are back again with another episode of People at HB. And today's guest is Vice President of Product. Let's welcome Mr. Jigar Joshi. Hello. Thank you. Hi. Nice to meet you. Thank you. How are you? As usual. Can't complain. Can't complain. So please tell me a little something about yourself. Okay. As you know, my name is Jigar Joshi. I started my career in this company way back in 2004, November 2004. And since then, maybe I did not leave company or company did not allow me to go. But our bond is strong. Almost more than 20-22 years we are connected now. So I am enjoying over here. So plenty of people think that if you want to grow in your career, you have to switch companies after a few years. Do you have a message for them that it's possible to stay in one company and grow from trainee to VP role? No, I completely agree with you. Nowadays, especially the people in Gen Z nowadays, but even before the Gen Z generations, people used to think that we need to have a switch maybe every 2 years, 3 years, either for work culture or for money, or maybe it's just life is boring. But it's not like that. If you find a passion, if you find that okay, you are ready to work, then there are companies like Hidden Brains. And it's not me only. There are many people over here who has been spending more than 10, 12, 15 years in the organization. So it's not always that you need to have a switch. You need to jump from one company to another company to achieve what you want. But in the same organizations, you can also get what you want. So this is a clear message. So very long career. आपने दोनों के साथ काम किया होगा, millennials के साथ भी, Gen Z के. Who is easier to work with? Nobody is easy to work because I am not easy to work with. But see, each generation has their own way of style working. So as a leader, you need to learn that how you would like to get the output from them. How was your journey? मतलब ट्रेनी से स्टार्ट किया और इतने बड़े पोजीशन तक पहुंचे, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे बीच में. I do still remember my first day in the company. You won't believe, मेरा इंटरव्यू कितना चला होगा? 45 minutes, 1 hour. Still you can guess. 2, 3 minute, hour, days. Hour, 3 hours. It was less than 30 seconds. What? Yes. Less than 30 seconds. I don't know what it was. It was a destiny, but that 30 seconds has changed my life. So that's why I still remember my first day. And आपने तो मेरे पूरी फ्लैशबैक मेमोरी याद करा दी. पहले आप किसी से सीखते थे, आज आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को. नहीं, मेरे से कोई सीखने जैसा नहीं है. मेरे से एक ही चीज सीखने जैसी है कि खाना कैसे खाओ, मस्त कैसे रहो. ये तो मजाक की बात हो गई. इतने आपने जो इतने स्विच किए, मतलब कुछ सीखा, कुछ सिखाया. आपको क्या इजी लगता है, मतलब कि हाँ यार ये लोगों से सीखना इजी है, पर सिखाने का टाइम आता है तो रे बाप रे, या इट्स वाइस वर्सा? नहीं, देखो, सीखने में एक आपका इंटरनल फीलिंग्स होता है कि मुझे सीखना है, तो वो आप अपने आप को एम्बाइव करना होता है. पर अगर आपको किसी को सिखाना है तो आपकी भी उतनी ही चाहत होनी चाहिए जितनी सामने वाले की चाहत होती है सीखने के लिए. तो इफ द पर्सन इज रेडी फॉर द लर्निंग, देन ओनली यू कैन टीच. बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है आपके लिए? यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है. बिगेस्ट चैलेंज होता है. वो बिग या स्मॉल कैसे क्वांटिफाई करेंगे? उसका तो कोई पैरामीटर नहीं होता है टेम्परेचर की तरह कि यार 35 डिग्री है, 40 डिग्री है. बड़ा लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए, पर चैलेंज आपको बहुत कुछ सिखाता है. तो आई एंजॉय चैलेंज. देखते हैं अब और कितना आगे चैलेंज ले पाएंगे. और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी क्वालिटी आपने सीखी है जो आपको लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी ये मेरे को बहुत हेल्प करता है? यार एक पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि मैं सीख गया हूँ लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट होते हो तो लोगों की एम्पैथी, लोगों की फीलिंग, लोगों के बारे में जानना, तो वो आपको पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. आपके स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ,
वाइस वर्सा है। अब आपके पर्सनल लाइफ से भी काफी कुछ सीखते हो इन टर्म्स ऑफ द पीपल मैनेजमेंट, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्पफुल होता है। और आपकी जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा है? बहुत बैक किया हो आपने कि हर स्टेज जहाँ आप अटके वहाँ आपको एक पुश दिया हो, एक मोटिवेशन। एक तो मैं बोलूंगा कि कंपनी के ओनर फाउंडर जो राम सर है, उन्होंने हर कदम पे साथ दिया है। हर कदम पे उन्होंने मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी दे सकते हैं कि जब उनको भरोसा है कि कुछ करेंगे। तो वो उन्होंने भरोसा दिखाया, बाद में सही रहा नहीं रहा वो तो सेकेंडरी है, पर जर्नी के शुरुआत में हर कदम पे वो भरोसा रखे, वो एक बड़ी बात है। तो राम सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, और इतनी लंबी जर्नी एक ही कंपनी में करने के लिए फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो वो भी एक फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होगा? बिगेस्ट अचीवमेंट यार, एक ही कंपनी में 20 साल 22 साल निकालना, वो इटसेल्फ ही बिग अचीवमेंट है आज के जमाने में। बट उसमें तो कितना कुछ किया होगा आपने। हाँ, काफी पॉइंटर्स आए। अगर देखो, हर एक रोल के लिए अलग अलग अचीवमेंट होता है। कि अगर जब मैं डेवलपमेंट प्रोफाइल में था, तो डेवलपर्स के लिए जो होता है कि एक प्रोजेक्ट में अच्छा कंट्रीब्यूशन करना, उसके सारे मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को देखना। फिर जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल में था, तो कुछ टफ कस्टमर्स को हैंडल करना। तो ऐसे भी कस्टमर्स थे कि जिनके साथ कम्युनिकेशन करना इटसेल्फ बहुत टफ होता है, अप्रूवल लेना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। और आज अब स्ट्रेटजी लेवल पे डिस्कशन होता है, तो स्ट्रेटजी लेवल पे भी कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। तो हर एक पहलू पे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग अचीवमेंट्स होता है, पर वो सारे चैलेंजेस को पार करते हुए वी आर एट दिस स्टेज। बिकॉज जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है, और भी शायद अच्छी ही रहेगी। तो अचीवमेंट्स तो और भी अचीव करने हैं। अभी कोई बिगेस्ट का टैग नहीं मारेंगे, क्योंकि बिगेस्ट इज येट टू कम। नाइस। सो बेस्ट इज येट टू कम ऑफ कोर्स, बट कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा, यू मस्ट बी वेरी प्राउड कि यार ये मैंने मस्त कर दिया। यार 2-3 पॉइंटर्स या प्रोजेक्ट्स में हाईलाइट करना चाहूँगा, नॉट ऑन वन। सबसे पहले मैं बात करूँ कि जब मैं डेवलपमेंट प्रोफाइल में था और जस्ट टीएल प्रोजेक्ट लीड के मूवमेंट पे आगे बढ़ रहा था, तब एक बहुत बड़ी यूएस की फाइनेंस कंपनी, जो इवन आज के दिन भी बहुत बड़ी है, वीज़ा मास्टर कार्ड की भी पेरेंट कंपनी, उन लोगों का एक प्रोजेक्ट था। उसमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, टेक्निकल चैलेंज था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 में। तब गूगल भी इतना सपोर्टिव में थे, एआई तो है ही नहीं। और उस टाइम पे वर्ल्ड की सारी वेबसाइट्स को सारे फॉर्म्स ऑटोमेटिक फिलअप हो जाना चाहिए। मतलब वो एक बहुत ही टफ था, पर इट वॉज अ फन, इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग। तो वहाँ पे हम बहुत सीखे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ कि कस्टमर को कैसे क्या कमिट करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, कितना कमिट नहीं करना चाहिए। तो वो सब वहाँ पे सीखे। फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया, तो और कुछ स्टार्टअप्स तो काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे भी पहुँचे। उसमें से एक मॉल फॉर अफ्रीका करके, तो उसकी भी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। बाद में उसको एग्जिट मिला, काफ़ी अच्छा एग्जिट मिला। तो उनका भी था कि मंथली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पे वो लोग पहुँच गए थे। तो उसमें प्राउड फील हो रहा है कि फ्रॉम डे वन फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से लेके पूरा वो ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न बोल लो, वो लेवल पर पहुँच के उसका एग्जिट हुआ, तो उसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा। अभी एक है अपना रोकाई, जो कि अपना खुद का ERP है, स्पेशली वो डाउनस्ट्रीम बिजनेस के लिए बनाया था शुरुआत में, जिसकी शुरुआत हुई थी AMRS होल्डिंग, नाइजीरिया का एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उन लोगों के साथ प्रोजेक्ट बनाते बनाते पूरा ERP बना दिया, तो वो भी एक अच्छा अचीवमेंट बोल सकते हैं, अच्छा लर्निंग्स मिला है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ नहीं है लाइफ में कि मैं इसको हाईलाइट करके इसको नंबर 1 बोल दूं, बट गुड मेमोरीज, गुड लर्निंग्स, सम फेलियर्स, बट एट द एंड गुड लर्निंग। मैंने सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट दोनों में काम किया है, तो ज्यादा मजा किस में आता है? काम करने में। कुछ भी दे दो, काम करने में मजा आता है। हाँ बिल्कुल, वो कोई टैगिंग नहीं होता है।
हाँ, दोनों का अप्रोच, स्ट्रेटजी, थॉट प्रोसेस, एग्जीक्यूशन वो सब अलग रहता है। पर अगर आप काम को एंजॉय नहीं करोगे तो फिर वो चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, गेम हो, कुछ भी हो, अगर काम को एंजॉय नहीं करोगे तो आप नहीं एंजॉय कर पाओगे। आपने AI, ये ML, ऑटोमेशन, ये सब की बात की। आपने जब स्टार्ट किया और अभी जैसे काम होता है उसमें तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये टेक्नोलॉजीज ने एकदम धूम मचा दी है। सो आपका वर्क फ्लो कैसे चेंज हुआ ये सब टेक्नोलॉजीज को? नहीं, अभी भी चेंज तो नहीं हुआ है। ये पूरा मैं बोलूंगा कि ये ट्रांजिशन फेज है। AI इटसेल्फ ही अभी आपका बोलने जाओ तो इन्फेंट स्टेज पे है, काफी अर्ली बेबी स्टेज पे। AI इटसेल्फ वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल, अभी किसी को नहीं पता है कि ये कहाँ पे जाके क्या शेप लेगा। पर हाँ, एक चीज है कि AI ने पूरा रिवॉल्यूशन लाना शुरू कर दिया है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पहले हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, तो वैसे ही IT इंडस्ट्री में जब इंटरनेट आया था, फिर गूगल आया और अब AI आया। ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने वाली मोमेंट है और ये फेज पे हम ट्रांजिशन मोड में है। ये अभी कोई नहीं बोल सकता कि मैं फुल्ली AI शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि अभी AI 6 महीने में, 1 साल में काफी चेंज होने वाला है। तो ये भी ट्रांजिशन फेज है। हम लोग जैसे काम करते थे, अगर मैं जैसे आपने याद दिलाया अर्ली डेज ऑफ माय करियर, तो तब तो नोटपैड पे प्रोग्रामिंग होता था, अच्छा एडिटर भी नहीं था। और आज AI में आप सिर्फ बोलो और पूरा प्रोग्रामिंग हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो अगर मैं याद करूं मेरा पहला प्रोजेक्ट, जो जिसको बनाने में मुझे कम से कम 4-4.5 महीने लगे थे, आज वही चीज मैं शायद मैक्सिमम 20-25 मिनट, 1 घंटे में बना सकता हूँ विद AI। तो काफी चेंज हुआ है और काफी चेंज होगा। ये AI जर्नी में सबको शिफ्ट होना पड़ेगा। सबको शिफ्ट तो आई थिंक सब कर रहे हैं, बट ये एक बहुत चला है that AI will eat your job. What do you think about that? Is it true? Is it just a myth? Is it just a bubble? AI will eat your job if you will not match the footstep with that. सर, अब बहुत सारी बातें हो गई, एक क्विक फन रैपिड राउंड करते हैं। ये फन था? मैं तो सीरियसली कहाँ बात ही किया है, मैंने तो खाने की बात किया है ये सब। अभी कितना ठीक है, चलो क्विक, ठीक है। रैपिड एंड फायरी, रेडी? लेट्स स्टार्ट। इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर एट वर्क, व्हाट वुड इट बी? I would want that all of my near and dear ones get on the journey of AI as soon as possible. One word colleagues would use to describe you. Foodie. What do you prefer, innovation or perfection? Perfect innovation. Your desk neat or unorganized? Neat. Calls or chats? Calls. One habit that helps you stay productive. At the end of the day, I revisit my day. One app you can't live without. I am not tech freak. Though I am in the technology industry, I can survive without mobile for entire day. If AI could take over one task from you forever, what would you choose? नहीं, मैं AI को नहीं देना चाहूँगा मेरी लाइफ। If you could swap roles with anyone for one day, what would it be? Not about one day, but I would like to go back to the childhood memories. तो किसी भी बच्चे के साथ I would like to swap. Nice. Thank you so much, sir. It was great having you here. We really had a nice time. Thank you very much. Thanks for having me.